Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next part of your exam revision. This is the next part for the revision जो हम कर रहे थे पहले. So let's just start. So what we were doing was we were looking at the views. Okay, what is view? View is the parent class of all the activity widgets inside an activity. तो जितने भी जो भी widgets हैं, all of these are widgets. The view is the parent class for this. Not everything is a widget, but if you're using view, for example, image view, you see it's image view, it's text view, it's anything that's a widget. The parent class for that is view. So please bear in mind, keep this in your mind, note this on your register, so it will be helpful for your exam preparation. Also, we looked at the res folder. So what were the contents inside the res folder? So all the resources for our application, all of these are our application resources. तो हमारी res folder में अपनी application की resources होती है. Other than that, a really important thing is the manifests. So there will be a lot of questions related to your Android manifest XML. So you see what's inside the Android manifest. वो सारी permissions जो हमारी application को चाहिए होती है run करने के लिए. The minimum version of our Android, हमारी सारी जो भी information है हमारी application की to give to the operating system to connect, तो उसको इजाज़त लेने के लिए, all the permissions लेने के लिए, everything is contained in the Android manifest file. Okay, so हमारी Android की manifest file एक configuration file होती है जिसमें हमारे project की application की सारी configuration होती है. It holds all the permissions that our application needs. अगर हमारी application ने internet को access करना है तो manifest file में उसकी permissions होंगी. अगर उसने कैमरा यूज़ करना है, उसने settings को access करना है, कोई भी चीज़ हम उसको आपको पता है कि कुछ applications हम run करते हैं, so हमारा operating system हमें prompt करता है कि this application wants to ask for permission for the certain thing, for changing the ringtone, for accessing internet, for accessing your camera, gallery, microphone. ये सब चीज़ें हमने permission लेनी होती हैं, and it's contained in the configuration file. What is that configuration file? It is the Android manifest.xml. So please, I'm sure आप लोगों ने ये चीज़ note down कर ली होगी because it's part of your exam. उसके अलावा let's look it up in the internet. Android manifest. Every app project must have an Android manifest XML file at the root of your project. Okay, what does it do? What is it used for? The manifest files provides essential information about your app to the Android operating system and Google Play Store. The Android manifest helps to declare the permissions that an app must have to access data from other apps. So I'm sure you guys noted this down. Anyways, since we're done with the manifest, let's revise our whole environment. Okay, so let's look at these. Let's go to the code. Actually, let's stay in the XML, then we'll go to the code. So what is this? This is a button. So if we want to add a button to our screen, we use the button. This is a text view. अगर हमने अपनी layout XML activity के UI user interface में कोई text लिखना है तो we use the text view.
फॉर टेक्स्ट वी यूज टेक्स्ट व्यू, टू ऐड अ बटन वी यूज द बटन। और अगर हमने कोई इमेज, सर्टन इमेज, जैसे कि नॉट द मैनिफेस्ट फाइल, जैसे कि ये सर्टन इमेज है जो हमारी गेम में अप एंड डाउन हम मैनिपुलेट करके मूव कर रहे थे, और ये जो बॉल्स ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे ऑब्स्टिकल्स, ये सारे इमेजेस हैं। तो इनको ऐसे इस फॉर्म में लेके आने के लिए वी यूज़ द इमेज व्यू। फिर उसके बाद हमने इन इमेज व्यूज़ को किसी चीज़ के साथ असाइन करना होता है। फॉर दैट वी यूज़ फाइंड व्यू बाय आईडी। ये आईडीज हमने सेट की होती हैं, आईडी के थ्रू हम रेफरेंस करते हैं इन चीज़ों को। ओके, सो वी यूज्ड इमेज व्यू, बटन एंड एडिट व्यूज आल्सो। सो जैसे ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या करती है। टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट को लाने के लिए, इमेज व्यू इमेज को लाने के लिए, बटन बटन को लाने के लिए। इट्स रियली जनरल, द एग्जाम इज रियली जनरल, बट मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को देख के यू गाइस कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, और आप लोग विद इन लाइक 30 मिनट्स, ये अगर आपने स्टडी किया हुआ है 30 मिनट्स में आप लोग एग्ज़ाम कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स लुक एट दिस वन, मेन एक्टिविटी। ओके, ये व्यू हम लोग को नज़र आ रहा है, इसमें भी टेक्स्ट व्यूज यूज हुए हैं फॉर दिस टेक्स्ट, और ट्राई अगेन बटन, देयर इज अ बटन यूज्ड हियर। तो हम बटन क्यों यूज करते हैं? व्हाट्स द पॉसिबल यूज ऑफ अ बटन इन एन एप्लीकेशन? ओके, सो यहाँ पे हमने बटन क्यों यूज किया है? हमने देखा कि हमने इसके बटन के ऑन क्लिक हम कोई फंक्शन सेट करते हैं। इन दिस केस हम एक फंक्शन बनाएंगे जो ट्राई अगेन की सूरत में हमें दोबारा, अभी हम अपने एप्लीकेशन के इस पोर्शन पे नहीं पहुंचे बिकॉज दैट्स द कोर्स आफ्टर मिड टर्म्स। तो आप लोग अच्छे से मिड टर्म्स दें, फिर देन वी बी स्टडिंग ऑल द इंटेंट्स एंड द फंक्शंस, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाना है। सो हम इस मेन्यू में हैं, इस पोर्शन पे है, हमारी गेम चल रही है, पर जब हमारी ऑब्स्टिकल हिट होगी तो फिर हमारा ये वाला मेन्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। और जब हमारा ये वाला मेन्यू पे हम बटन क्लिक करेंगे तो फिर कुछ होना चाहिए। तो वी आर गोइंग ऑफ ट्रैक हियर। बटन का हम फंक्शन देख रहे थे कि बटन क्यों यूज होता है। सो द बटन, हमने अगर कोई भी फंक्शन इन्वोक करना है, कोई भी काम कराना है, किसी तरीके का कोई फंक्शन मैं बनाता हूँ, जैसे कैलकुलेटर ऐप में, आप लोग सोचे कि इस ऐप में हमने बटन्स क्यों यूज़ किए थे? हमने बटन यूज़ किए थे कोई भी फंक्शन को इन्वोक करने के लिए। मेक श्योर यू गाइज राइट दिस डाउन, दैट्स द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ बटन। कोई भी फंक्शन, बटन प्रेस करके हम भी कोई काम करा सकते हैं। तो ये काम हम कैसे अचीव करते थे? नंबर 1, व्यू को जब हमने व्यू सेट किया होता है उसके पैरामीटर में फंक्शन के, तो किसी फंक्शन के पैरामीटर में हमने अगर व्यू सेट किया तो हम ऑन क्लिक पे यूज करते हैं। अदरवाइज देयर इज वन मोर ऑप्शन एंड दैट इज द ऑन क्लिक लिसनर। सो मेक श्योर यू गाइज नो कि एक ऑन क्लिक लिसनर, नाम से ही पता चल जाता है ऑन क्लिक लिसनर, वो सुन रहा है कि जब भी क्लिक होगा। तो यू गाइज शुड नोट डाउन द ऑन क्लिक लिसनर। तो जब भी हम एक मेथड, कॉल बैक मेथड को इन्वोक करना चाहते हैं, हम उसके लिए ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। और इन दिस सिनेरियो ये भी ऑन क्लिक लिसनर ऑलरेडी है इन द GUI पार्ट ऑफ द एंड्रॉयड स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर ये ना हो, हम इस पे भी एक फंक्शन लगाते हैं विच इज ऑन क्लिक लिसनर। दिस इज अ ऑन क्लिक लिसनर टू इन्वोक सम फंक्शन जो हमने काम करवाना है, तो उसके लिए हम ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। उसके बाद लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द थ्योरी। ओके, लेट्स लुक फॉर एंड्रॉयड कंपोनेंट्स। ये हमने क्लास में भी किए थे।
दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर क्लास। तो एंड्रॉयड के कितने टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्टिविटीज, सेकंड कंपोनेंट इज इंटेंट एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, थर्ड इज सर्विसेज, फोर्थ इज कंटेंट प्रोवाइडर्स, एंड द फोर्थ इज विजेट्स एंड नोटिफिकेशंस। तो बेसिक कंपोनेंट्स एंड्रॉयड के वो जो मिलके एंड्रॉयड एप्लीकेशन को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। So let's look into some of these. Okay, activities हमें पता क्या होती हैं? An activity is the first stepstone. It's the class for our whole project. इसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट लिखते हैं। सर्विस वो क्या चीज़ है जो बैकग्राउंड पे रन हो रही है। It does not provide a user interface. ये हमें नज़र नहीं आ रही हो मगर वो कोई ऑपरेशंस बैकग्राउंड में कर रही होती हैं, तो उसको कहते हैं सर्विस। उसके अलावा द कंटेंट प्रोवाइडर्स, these Android components bring the object-oriented functionality in the system. Content providers encapsulates data. Content providers, as the name indicates, provides content of one process to another. Okay, तो content providers हमें, as the name suggests, content provide करे, वो act करते हैं as an interface and a gateway to access data from a structured set. तो ये वो ऑब्जेक्ट होता है जो कोई रिक्वेस्ट रिसीव करता है और एक रिजल्ट रिटर्न करता है। सो लेट्स लुक एट द एंड्रॉयड इंटेंस एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। इंटेंस कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं हमारी एप्लीकेशन को टू सेंड मैसेज टू वन अनदर, या फिर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के तक जाने के लिए हम इंटेंस को यूज़ करते हैं। ओके, सो रिमेंबर यू गाइस, हमने ब्रॉडकास्ट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, हमने ब्रॉडकास्ट के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर ब्रॉडकास्ट्स? Something that can receive these broadcasts, they should, it's a message that spreads out, some event occurs. ब्रॉडकास्ट करने के लिए कोई इवेंट अक्योर होती है। फॉर एग्जांपल कोई नोटिफिकेशन जैसे पॉपअप होती है, कोई सेटिंग फॉर इवन फॉर द अलाउइंग ऑफ द परमिशन। ओके, द ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। तो व्हाट आर द ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हमने क्लास में पढ़ा था। व्हाट आर लिसनर्स एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स में जब भी कोई चेंज होता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपको नोटिफिकेशन आती है कि जब भी बैटरी लो हो जाए फ्रॉम अ सर्टेन लेवल, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में 15% से अगर बैटरी लो हो जाती है तो आपको एक ब्रॉडकास्ट रिसीव होती है, विच इज़ कि अपने मोबाइल को प्लीज़ चार्जिंग पे लगा लें वरना द बैटरी इज़ रनिंग आउट एंड इट विल पावर ऑफ। So that's a broadcast that you received. तो उसके लिए through intent, हम intent के through भी कर सकते हैं। So for example, एक example मैं देता हूँ, an exam point of view example, कि अगर आप लोगों की बैटरी लो हो गई है तो उसके लिए एंड्रॉयड कौन सा इंटेंट फायर करेगा? तो बिकॉज वो कंटिन्यूसली चेक कर रहा है, तो वो ये इंटेंट तो नहीं है कि 15% से नीचे होगी तो हो जाए। इट डजंट वर्क लाइक दिस, इट्स अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो लॉजिक क्या कहती है, अगर हमारी बैटरी 80 पे है तो जब 79 पे हो तो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करे इसको 79 इज इट लेस देन 15? नो, क्योंकि हमारी लिमिट 15 है फॉर द ब्रॉडकास्ट रिसीवर टू फायर। नो, तो उसके लिए क्या होगा, इट विल चेक android.intent.battery_changed. दिस वुड बी द फंक्शन। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि चेंज को चेक कर रहा है वो। ये तो जब 80 से 79 पे आएगी तो इट विल फायर एन इंटेंट के बैटरी चेंज हो गई है, तो वो चेक करेगा कि जो 15 से लेस है तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर फायर करना है वरना नहीं करेगा। तो
जब तक वो फिर 78 76 हर बार वो चेक करता रहेगा। जब तक वो बैटरी की परसेंटेज 15 से लो नहीं होती या 15 नहीं हो जाती, it won't do a broadcast receiver. So please remember this example. Okay, उसके अलावा we have finished our syllabus. तो most of it, बाकी जो चीज़ें एग्ज़ाम में हैं, they're so general कि if you have like an IQ of a bird, जो mostly आप लोगों का है, bird brains ही आप लोग mostly, तो आप लोग भी वो general MCQs को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये जो दूसरे थोड़े स्टडी रिलेटेड, यू गाइस हैव टू वॉच दिस वीडियो फॉर दैट। उसके अलावा जनरल MCQs आप कहीं से भी कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द, बिकॉज इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन एनीवेयर। सो आप लोग प्लीज़ जनरल इंफॉर्मेशन को भी हिट करें, जैसे कि एंड्रॉयड क्या है, IDE क्या है, एंड लुक एट सम ऑफ द फंक्शंस हियर। हम अपनी एप्लीकेशन रन कैसे करते हैं, इधर से रन करते हैं। जब हम एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इट्स इनिशियलाइजिंग द ADB क्या है, इट्स सो जनरल, आपको इंटरनेट से पता चल जाएगा। इट्स द एंड्रॉयड डिबग ब्रिज, ये डिबग करता है, सो इट्स द एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। एनीथिंग दैट आपको पता एग्जाम में आया कि व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर, ऑब्वियसली इट्स अ ओपन बुक पेपर, you guys can find it from any source. तो make sure you have your minds open कि मैं ये भी options मेरे पास मौजूद है। उसके अलावा look through the IDE, जनरल चीज़ें देखें, एंड्रॉयड क्या है, लेटेस्ट वर्जन क्या है, जो कि जनरल इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली आप ना भी देखें तो आपको मिल जाएगी। एंड्रॉयड किस कंपनी ने बनाया है, इट्स सो जनरल, आप लोगों के कैलिबर के मुताबिक ही मैंने एग्ज़ाम बनाया है, एंड ड्यू टू कोरोना आप लोगों को बहुत फेवर दिया, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो, इट विल रियली हेल्प योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एंड मोस्ट ऑफ ऑल गाइज डोंट वरी, you can do this, and really good luck for your exam. Please make notes of this video. अगर आप लोग ये वीडियोस एंड एग्ज़ाम के टाइम देखेंगे तो ट्रस्ट मी, यू वोंट बी एबल टू मैनेज। पहले आप लोगों ने ये वीडियोस देखने हैं और उसके बाद इनको नोट डाउन करना है, एंड जिस भी इंफॉर्मेशन पे, टेक्निकली ऑल ऑफ माई इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी चाहिए, बट जिस पे मैं ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ 100% उसको नोट डाउन आप लोगों ने करना है। तो आप लोग you guys will achieve the maximum marks. Again, thank you and good luck for your exam. Allah Hafiz.